So the structure of table tag, we have already discussed the tags, the meaning, the purpose, the syntax, right? The structure also. Now let's make one of the table. So first tag, that is HTML, head, title, demo of table tag. Then close the title tag. After that, close the head tag. Then start the body, set the BG color, or you can set the background also. Image if you want to apply. Right? Now, for creating a table, firstly the table is to be used, right? We have done the attributes for the table tag. Table tag के अंदर हम क्या क्या attribute लगा सकते हैं? Firstly, before that, I'm just going to make the structure, a dummy structure. So table tr, and inside the tr, td, okay, where the content of the table will go. Then close the td tag. Once again, other row, close the td, and then close the row. So this makes the first row. ये आपका one row है, ठीक है? This makes the complete one row. One row having two cells. Cells will be given by the TD, table data. Similarly, if you want to start the new row, the same thing is to be copied. You can copy it down and paste it. Okay. So this means two rows have been created. And here close the table tab. Right? Then close the HTML. Okay, now save it. Table.html. Set the extension. Save. So this is my table web page. Okay, I have set the color, background color as that light blue. So अभी आपको लग रहा होगा कि टेबल क्यों नहीं appear हो रहा? Because we have not given any border. If you want कि टेबल का कोई background color आए, so you can set the background color of a table as well using the same attribute, that is BG color. So table BG color equal to जो भी आप color set करना चाहते हैं, right? And if you want to give border to your table, आपको table का border set करना है, so we will write the attribute border. Give a value. This value means the thickness of the border, the thickness of the lines surrounding the table. Table की surrounding में कितना आपका width आ रही है line की, so that we have set it using a border and color. So see, यहाँ पे अभी क्या आ रहा है? Gray color, एक border आ रहा है, ठीक है? Gray color जो by default color है, और टेबल का बैकग्राउंड मैंने ग्रीन सेट करे, सो यू कैन सी द ग्रीन कलर इज अपीयरिंग हियर. ओके, नाउ यू कैन सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ अ टीवी. हाइट कितनी हाइट आपको रखनी है? लेट इट बी, आई वांट टू टेक इट 500 पिक्सल. विड्थ कितनी रखनी है? 400 पिक्सल. So this way you can give the height and width for a table. Okay, so we have given the height and width. All right, width को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, height को थोड़ा कम कर देते हैं. Now the next attribute of table tag, पहला attribute कौन सा किया? BG color, that is used to set the background color on the table. Border, that is used to give
द थिकनेस ऑफ द लाइंस सराउंडिंग द टेबल, हाइट कितनी देनी है आपको टेबल की, विड्थ कितनी सेट करनी है. नाउ यू कैन सी द टेबल इज बाय डिफॉल्ट appearing on the left side of the page. The table is appearing on the left side of a page. You can place your table in the center or towards the right side by using the align attribute. So look here, we have to use align, and the value of align can be left, right or center. By default, the table will appear on the left side, but you can place your table towards the right side or in the center of a rectangle. Use the attribute align like this. Table align equal to center. If you want the table into be a center. So look at the output now. The table is in the center now. Okay. Now you can see the border is appearing in black color. That is the by default color. You can change the border color as well. The attribute is border color. Border color. तो यहाँ पे आप बॉर्डर का कलर भी सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सेट द कलर ऑफ द बॉर्डर एज रेड. तो बॉर्डर कलर क्या लगा दिया मैंने, रेड. ऑलराइट, एनी डाउट टिल नाउ? एट्रीब्यूट्स क्लियर हो रहे हैं टेबल टैग के. बीजी कलर, इट विल सेट द बैकग्राउंड कलर. border to set the lines around the table, कितनी thickness रखनी है. then you can set the border color. the color of the border can be set. align where you want your table to be placed in the web page. height and width, so you can set the width and height of a table. any doubt till now? यहाँ तक सबको clear है? now let me put a content in this. मैं यहाँ पे normal content डाल रही हूँ. roll number and name. ओके, सो ये हमारी फर्स्ट रो. सेकेंड रो में अब रोल नंबर और नेम का कंटेंट डालना पड़ेगा मुझे. आई हैव टू पुट अ कंटेंट फॉर द रोल नंबर एंड फॉर द नेम. तो यहाँ पे मैंने डाला रोल नंबर 1, नेम इज अमित. राइट, सेम वे you can make multiple rows in the same manner. roll number 2, another row, this table is having right now 4 rows. It is having 4 rows. Now, okay, clear? Now the content is appearing in the black color, and by default you can see the content is on the left side. Content हमारा कहाँ पे आ रहा है? Left side के ऊपर आ रहा है. If you want your content to be placed in the center of a cell, ये क्या है? ये एक सेल है, और सेल के अंदर आप एक कंटेंट को सेट करना चाहते हैं, either as a center align or the right align, क्योंकि by default तो left align चल ही रहा है. Okay, so you have to use either. what you can do, there are 2 ways. Look at the screen first. There are 2 ways how you can make the content in the center. Either तो आप tr के अंदर align attribute लगा दो, tr align equal to center. तो इसका मतलब ये है कि आप रो के ऊपर सेंटर अलाइन कर रहे हैं, तो रो के अंदर जितने भी सेल्स आ रहे हैं सबके ऊपर सेंटर अलाइन हो जाएगा. What if we are applying the align attribute inside the tr, so that means we are aligning the center for all these cells, जितने भी उसके अंदर सेल्स होंगे. अब इसके अंदर राइट ना how many cells are there? 2 cells. तो इन दोनों के लिए कंटेंट हमारा सेंटर में अलाइन हो जाएगा. सी, मैंने सेकंड रो के ऊपर किया है, तो सेकंड रो का मेरा कंटेंट सेंटर में आ गया. सेकंड रो का कंटेंट इज इन द सेंटर. हाउ इट इज अपीयरिंग? बिकॉज आई हैव अप्लाइड tr align equal to center. तो ये मेरे इस पर्टिकुलरली रो का कंटेंट सेंटर में अलाइन हो गया. एंड हियर द tr टैग इज क्लोज, तो इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी यहीं पे ही खत्म हो जाएगी. सेकेंड वे व्हाट यू कैन डू इज, आप किसी भी सेल के अंदर भी अलाइन एट्रीब्यूट लगा सकते हो, लाइक दिस.
अब कह रहे हैं को मैं यहाँ पे 2 को सेंटर में रख रही हूँ, लेकिन मैं कैमलिन को राइट अलाइन कर रही हूँ, अलाइन इक्वल टू राइट, मतलब मैंने दोनों सेल्स की प्लेसमेंट कंटेंट की डिफरेंट रखी है थर्ड रो में. सो सी 2 इज इन दी सेंटर, कैमलिन इज इन दी राइट. अगर मैं रो पे लगा दूंगी तो पूरे के पूरे जितने भी सेल्स उसके अंदर आ रहे हैं सबके लिए सेम तरह की अलाइनमेंट सेट हो जाएगी, लाइक इन दिस केस. बट इफ यू वांट टू सेट द अलाइनमेंट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट सेल, हर सेल की यूनिक अलाइनमेंट रखना चाहते हो तो आप टीडी के अंदर भी लगा सकते हो. लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे सारे सेल्स की कॉमन अलाइनमेंट ही आ रही है तो बेटर टू यूज इनसाइड अ टीआर, क्योंकि टीआर पे आपको सिर्फ एक ही बारी लगाना पड़ रहा है, टीआर अलाइन इक्वल टू सेंटर. अदरवाइज हर सेल के अंदर आपको ये कोडिंग बार बार करनी पड़ेगी. गॉट द डिफरेंस? दिस थिंग इज क्लियर. नाउ the next, the concept of header cells and the normal cells. Now all these are the normal cells. ये सारे नॉर्मल सेल्स हैं क्योंकि हमने टीडी टैग यूज करा है. वी हैव यूज्ड द टैग टेबल डेटा. व्हाट इफ आई वांट टू मेक द हेडर, मुझे हेडर रो बनानी है. फॉर मेकिंग द हेडर रो द टैग हियर शुड बी टीएच. यहाँ पे टैग क्या होना चाहिए था? टीएच. एंड टीएच में ऑटोमेटिकली द डेटा इज सेंटर्ड अलाइन. तो मतलब जहां पे भी टीएच आप यूज कर रहे हो उस रो में आपको लाइन सेंटर करने की जरूरत नहीं है. We will not set the alignment as center in case we are using the header row, because the header cells are automatically by default centered align and they will appear in the bold. अब मैंने हेडिंग बनाई है रोल नंबर और नेम की, तो देखो यहाँ पे मैंने अलाइन इक्वल टू सेंटर नहीं सेट करा, बट इवन दो इट इज अपियरिंग इन द सेंटर. सेंटर में भी आ रहा है और बोल्ड भी आ रहा है क्योंकि ये टीएच सेल की प्रॉपर्टी है. TH tag will automatically appear the data in the center and in the bold form. This thing clear? आप TD के अंदर क्या एट्रीब्यूट लगा सकते हो, TH के अंदर क्या एट्रीब्यूट लगा सकते हो, TD के अंदर क्या एट्रीब्यूट लगा सकते हो. These things are clear. Okay. Now the next thing, you can also set the BG color in the row. आप किसी भी रो का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं. The same attribute is to be used, TR BG color. ओके, टीआर बीजी कलर. अब मैंने पर्टिकुलरली फर्स्ट रो का कलर सेट कर दिया, बीजी कलर यूज करा मैंने रो के अंदर, तो मैंने सिर्फ फर्स्ट रो पे लगाया है तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी फर्स्ट रो पे अपीयर होगी लाइक दिस. ओके, मैंने टीआर के अंदर लगाया तो टीआर में जितने भी सेल्स आ रहे हैं सबके ऊपर बैकग्राउंड कलर क्या लग गया? येलो. नाउ यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट सेल ऑल्सो. जैसे अब सेकंड वाला है, जो लास्ट वाला है, इस पे मेरे को दोनों सेल्स पे डिफरेंट सेट करना है, तो आई विल यूज इनसाइड दी टीडी टैग, नॉट इन दी टीआर. टीआर पे लगाओगे तो दोनों सेल्स पे आ जाएगा. अगर आपको पर्टिकुलरली एक सेल का कलर चेंज करना है तो यू हैव टू यूज इनसाइड अ टीडी टैग. ओके, सो टीडी कलर, जो भी कलर आपको सेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका व्हाइट सेट करना है और नेक्स्ट वाले सेल का कलर I want to set gray. Okay, so I have set a color differently for different cells, but if you will apply the BG color in the row, it will give the color to the entire row. Okay, any doubt till now? Note down the coding first, hurry up. Now you can also set the background, you can set the picture. आप टेबल के ऊपर पिक्चर भी सेट कर सकते हो, या किसी रो के ऊपर पिक्चर लगा सकते हो, या किसी टीडी के ऊपर भी पिक्चर लगा सकते हो. अब यहाँ वाले सेल में आई वांट टू अप्लाई द बैकग्राउंड ऑल्सो. मुझे बैकग्राउंड लगाना है. बैकग्राउंड, कॉपी द पाथ ऑफ द इमेज फ्रॉम योर सिस्टम. I want to choose this. Okay, so right click, open it in the browser window. Copy the path. Now
Instead of applying the background color, I am applying a background picture on a row. Now see the output. रो के ऊपर मेरा बैकग्राउंड पिक्चर आ रहा है. फर्स्ट रो पे मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया, सेकंड रो पे मैंने पिक्चर लगा दी, थर्ड रो पे मैंने कुछ नहीं लगाया. थर्ड रो का जो कलर आ रहा है वो टेबल का कलर आ रहा है, जो हमने टेबल बीजी कलर सेट किया है. सी है, ठीक है, ये टेबल का बैकग्राउंड कलर आ रहा है, लेकिन थर्ड रो पे मैंने कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करी है कलर की. फोर्थ रो पे मैंने इंडिविजुअली टीडी के ऊपर डिफरेंट कलर लगा दिया, सेकंड सेल के ऊपर मैंने डिफरेंट कलर लगा दिया. All right, you can note down the concepts. TD के अंदर अलाइन, TR के अंदर अलाइन, TR के अंदर बीजी कलर सेट कर सकते हैं लाइक दिस. रो के अंदर बैकग्राउंड लगा सकते हैं. सिमिलरली आप TD के अंदर भी बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं. Done. Now there are two main important attributes that are used inside the table tag. Table tag में हमारे पास दो attributes होते हैं. One is called cell spacing. Other attribute is called cell padding. Now what's the difference between the two? Cell padding क्या करता है? It is a space. It will give the space between the content of a cell and edge of a cell. Edge of a cell means cell का border. Look here. आपको एक येलो कलर में दिखाई दे रहा है सेल. ओके, इसकी सराउंडिंग में देखो, ये कंटेंट है रोल नंबर और इसका एक अपना एक पर्टिकुलरली बॉर्डर है. हर सेल का एक बॉर्डर होता है. एक टेबल का आउटर बॉर्डर है जो मेन बॉर्डर होगा, और एक इनर बॉर्डर होगा. इनर बॉर्डर क्या है? सेल का बॉर्डर. क्लियर? Wait, I just show you this way so that it can be more clear. This is a table, right? ये टेबल का बॉर्डर है, that is coming in a pink color. Now, if I am saying टेबल का एक इनर बॉर्डर भी होता है, so that means I am talking like this. तो ये टेबल के अंदर सेल्स हैं. These are the 4 cells inside a table. Got the point? Now I am saying ये जो डिस्टेंस आ रहा है between the cells, the distance between the cells, okay? So the distance between the cells is called cell spacing. The distance between the cells is called cell spacing. Got it? अब इसके अंदर कुछ कंटेंट होगा, जैसे हमने रोल नंबर नेम्स वगैरह डाले. So this is the content of a table. ये कुछ कंटेंट पड़ा है हमारे सेल के अंदर. All right, now you can see there is a border of a cell and a content. कंटेंट और बॉर्डर के बीच में कुछ स्पेस आ रही है, जैसे यहाँ पे कंटेंट है और ये इसके सेल का बॉर्डर है. ये जो सेल के कंटेंट में और सेल के बॉर्डर में जो स्पेस आ रही है, दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड सेल पैडिंग. This is called cell padding. So now listen the definition correctly. Cell padding, amount of space between the cell content, जैसे कि C, and cell border, C वाले का border, जो पर्पल कलर का border बनाया मैंने. Spacing between the cell content and the cell border is called cell padding. लेकिन cell spacing क्या है? स्पेसिंग बिटवीन द सेल्स, जो सेल्स के बीच में स्पेस आ रही है वो सेल स्पेसिंग है. सेल के कंटेंट और सेल के बॉर्डर के बीच में जो स्पेस आ रही है, दैट इज कॉल्ड सेल पैडिंग. गॉट द डिफरेंस? डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों में? सेल स्पेसिंग क्या है? स्पेसिंग बिटवीन द सेल्स. सेल पैडिंग, स्पेसिंग बिटवीन सेल कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ
cell. Okay, so now let's see it practically also. So I want to set a cell spacing here first. मैंने यहाँ पे डाला 20, मतलब I want to set the spacing between the cells as 20 pixel. अब देखो, look at the output. पहले कैसे आ रहा था? अगर मैं यहाँ पे सेल स्पेसिंग नहीं सेट करती हूँ तो कैसे आ रहा था आउटपुट? Look here, it is appearing like this, normal. लेकिन अगर मैं सेल के बीच में स्पेस डाल दूं, मैंने यहाँ पे स्पेसिंग सेट कर दी, अब देखो सेल्स के बीच में स्पेस आ गई 20 पिक्सल्स की फ्रॉम ऑल 4 साइड्स, चारों साइड से 20 पिक्सल की स्पेस सेट हो गई अराउंड द सेल. ओके, नाउ इफ आई वांट टू सेट अ स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द सेल बॉर्डर, तो यहाँ पे मैंने डाला 5 पिक्सल की स्पेस सेट हो जाए. नाउ सी, ओके, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पहले ही इतना को आ रहा है, तो हम यहाँ पे 25 ले लेते हैं. नाउ सी, सेल के बॉक्स के अंदर और सेल के कंटेंट के बीच में इतनी स्पेस बढ़ गई चारों साइड से. दैट इज कॉल्ड सेल पैडिंग. राइट, द डिफरेंस इज क्लियर, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग. नाउ if you remember, we have discussed one more tag, that is caption tag. Caption tag. Now what is the use of caption tag? That is used to give heading of a table, summary of a table. जब टेबल की समरी या टेबल की हेडिंग आपने देनी है, that is called caption tag. Okay, you see here, after the table tag, tr बनाने से पहले you will use caption tag here. Caption, okay, then close the caption tag. और यहाँ पे मैंने दे दिया स्टूडेंट इन्फो. मैं स्टूडेंट की डिटेल स्टोर कर रही हूँ, स्टूडेंट के रोल नंबर एंड नेम्स. आफ्टर द टेबल टैग यू हैव टू यूज कैप्शन टैग. राइट, नाउ लुक एट द आउटपुट. अब देखो टेबल के ऊपर ही heading आ रही. This heading is coming from the caption tag. Clear? The concept of table tag is clear, everyone? Now instead of background color of a table, you can also apply the background to a table. आप image भी लगा सकते हो. Table background. अब यही background सारी मैं table पे लगाना चाहती हूँ. So what I will do here? So I have copied the path of the image, right? And instead of here, I'm just giving like this. अब टेबल का पहले बैकग्राउंड कलर सेट करा था हमने ग्रीन. Now instead of green color, I want to give a image on the background. So the image is of red and orange color. तो टेबल का बॉर्डर हमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, तो we should change the color for that. तो border color हम यहाँ पे change कर लेते हैं blue. Right? Clear? You can set the background colors for the individual cells also, for a row also. Table bg color equal to maroon. क्लियर? और अगर आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट व्हाइट कलर में चाहिए, व्हाट यू कैन डू हियर, यू कैन सेट द टेक्स्ट कलर इनसाइड द बॉडी टैग. तो यहाँ पे भी बैकग्राउंड व्हाइट है तो ये दिखेगा नहीं, सो वी शुड चेंज इट. ओके, दिस वे यू कैन डू, यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज. जैसे भी आपको डिपिक्ट करना है अपना कंटेंट, यू कैन चेंज इट दैट वे. Yes, so this completes our table topic. Any doubt? Any doubt to anyone how to make a table?
coding is clear? Now in your books on page number 135, one table is given. On page number 135, look at the table. Let's make that. Okay, so before that ये मेरे पास एक टेबल बने. अब यहाँ पे देखो, if I want to link this with my other pages, यहाँ पे मुझे लिंकिंग करनी है. तो what I will do, हमारे पास यहाँ पे पेजेस बने हुए थे ना, इमेज और इंडेक्स नेम के. We were having the pages, हमने यहाँ पे लिंकिंग करी थी. अब सेम लिंकिंग मुझे इसके साथ करनी है, तो I will copy the path and inside the table document, instead of a content, you can also set the link here. ahref, copy the path. All right. और इसके अंदर हमने डाला होम पेज. Close the tab. तो इंस्टेड ऑफ कंटेंट, यहाँ पे क्या आ रहा था, कंटेंट आ रहा है जैसे 03, वैसे ही मैंने इंस्टेड ऑफ नेम यहाँ पे मैंने कंटेंट डालना. और इस टाइम पे कंटेंट क्या है, मेरा लिंक है. राइट. नाउ सी, अब देखो कंटेंट की जगह पे क्या आ गया, लिंक आ गया. तो अगर मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूंगी तो आई विल गो बैक टू दी होम पेज. तो ये आपका लिंकिंग का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया. ओके, तो यहाँ पे अभी पर्पल कलर क्यों आ रहा है, हु विल टेल मी व्हाई द कलर ऑफ होम पेज इज अपीयरिंग एज इन पर्पल कलर. आई हैव टोल्ड यू. हाँ जी एंजल. Ma'am, because this link is already used. Yes, because the link has been already visited. ये लिंक एक बारी विजिट हो चुका हुआ है. ओके, जब लिंक हमारा विजिट हो जाता है, द कलर ऑफ द लिंक विल चेंज इनटू अ पर्पल कलर. ऑलराइट. पहले बाय डिफॉल्ट लिंक का कलर क्या आता है, ब्लू. जब लिंक को हम क्लिक करते हैं दैट इज रेड. एंड व्हेन द लिंक हैज बीन विजिटेड, एक बार लिंक हमारा विजिट कर चुका है, द कलर विल चेंज इनटू द पर्पल कलर. सो सी, इफ आई विल क्लिक ऑन इट, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो भी रेड कलर आ रहा है क्योंकि मैंने क्लिक करके रखा हुआ. सो हमने यहाँ पे पाथ लगाया है फर्स्ट पेज का. आई विल गोइंग टू क्लिक ऑन इट एंड आई एम कमिंग बैक टू माय इंडेक्स पेज, माय होम पेज. सो द कंसेप्ट ऑफ लिंकिंग इज आल्सो क्लियर. Right. So on page number 135, the question is given, my classmates. Everyone look carefully. Open page number 135 in your books. Open the page number 135. So this is the home task that you people have to make. आपने टेबल की कोडिंग करनी है इसके अंदर. Instructions are given carefully. अब देख लो दोबारा से. Title of the web page you will set as my classmates. Set the top margin of the web page as 75. तो body के अंदर top margin equal to 75. Set the table border. Size आपको दिया हुआ है 3 और border color आपको given है green. Table की height 250 given है. Width 500 pixels. Align the table in the center. तो table align equal to center लगेगा. Then 5 columns बनाने हैं आपको. Serial number, name, birthday, email ID and phone number. Set the background color and the border color. Background color of the table is appearing as pink और जो border आ रहा है आपके पास that is of green color. Okay. और cell padding आपको given है 5. This is the home task. You people have to make this web page. और कल की क्लास में सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने सिस्टम से लॉग इन करेंगे. जब आप क्लास अटेंड करोगे कंप्यूटर की, यू विल लॉग इन फ्रॉम योर सिस्टम, फ्रॉम योर लैपटॉप्स और फ्रॉम योर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. एंड आई विल अलाउ यू, आई विल रेंडमली आस्क एनी ऑफ द रोल नंबर एंड आई विल आस्क यू टू प्रेजेंट योर स्क्रीन. जैसे मैं जूम के ऊपर शेयर स्क्रीन करती हूँ, शेयर स्क्रीन करके मैं आपको ऐसे कोडिंग दिखाती हूँ, इस तरह से मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ. The same way you will going to perform this activity and you will share in the class tomorrow. मैं किसी को भी randomly किसी का भी रोल नंबर बोलूंगी and this will be the lab task. जैसे हमारा स्कूल में क्या होता था, लैब्स में आते थे, आप लैब टास्क परफॉर्म करते थे.
एंड यू नो दैट प्रैक्टिकल में हमारे लैब टास्क के मार्क्स होते हैं ना, द रूटीन लैब ऑब्जर्वेशन, तो दैट इज अ काइंड ऑफ लैब ऑब्जर्वेशन टुमारो। ओके, इसको परफॉर्म करोगे, आप अपने पास आज बना के रखोगे, कल रैंडमली मैं किसी भी रोल नंबर्स को बोल सकती हूँ, आप अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट करोगे एंड यू विल शो मी द आउटपुट। ओके, एनी डाउट और एनीथिंग यू वांट टू आस्क, क्वेश्चन में नहीं कुछ क्लियर है तो यू कैन आस्क मी। कोई टेबल टैग का कोई टैग नहीं क्लियर है, एनीथिंग। So we have completed this chapter. Yes, बच्चे, any doubt, anything you want to ask or any kind of query you are having? मैम हम इसमें फॉन्ट टैग लगा सकते हैं? हाँ जी, बिफोर द टेबल टैग, पहले फॉन्ट टैग ओपन करो, फिर टेबल टैग बंद करने के बाद फॉन्ट टैग को क्लोज कर दो। ओके, क्लियर हो जाएगी एक्टिविटी? So you have to present it tomorrow. Okay.